Hello, welcome to Graduate Guru. We are starting with a new session, and in this session we'll be seeing commission, brokerage and discount as a chapter. And ये chapter में we are going to see what the MCQ, fill in the blanks and true or false type of questions, that is objective questions. Now यहाँ पे ये मैथ्स 2 का फर्स्ट चैप्टर है, कमीशन, ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट. सो यहीं पे हमें समझना है कि ये MCQ, fill in the blanks and true or false type of जो क्वेश्चंस होते हैं उसका वेटेज है 12 मार्क इन मैथ्स 2 एंड 12 मार्क्स इन मैथ्स 1. एंड कोई भी स्पेसिफिक चैप्टर के लिए कोई स्पेसिफिक वेटेज ऐसा नहीं है कि ये चैप्टर से इतने मार्क का एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स या ट्रू और फॉल्स आएगा. हाँ, इंडिविजुअल चैप्टर्स का वेटेज है, बट स्पेसिफिकली ट्रू और फॉल्स इतने मार्क का यही चैप्टर से आएगा या ऐसा कुछ है नहीं. सो भैया ये जो भी चीज है ये हमें खुद के बलबूते पे ही करनी है. ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू और फॉल्स है ना, तो ये तो हम देख लेंगे आगे पीछे से. पर अगर हर आगे पीछे वाला यही सोच के आएगा तो किसी ना किसी को तो करना पड़ेगा ना. सो फॉर दैट हमें इसको अच्छे से समझना है एंड वील डू ईच एंड एवरी चैप्टर दिस वे, जहां पे विल सी द कंसेप्ट फर्स्ट. एंड एक बार कंसेप्ट हो गया उसके बाद हम लोग उसके एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू और फॉल्स देखेंगे. So this is what we have to understand. So let us first start with commission, brokerage and discount as a chapter. Now, commission, brokerage and discount as a chapter में we'll see the first term which we need to understand is principal. So यहाँ पे आप देख रहे हो principal क्या है. Principal refers to an individual party or parties participating in a transaction. So we'll mark this part कि ये principal का basic meaning हो गया. Next, commission. The charge is paid to an agent for doing the work on behalf of principal is called commission. So ये भी मार्क किया. The commission or remuneration paid to an agent is generally fixed as some percentage of value of the transaction. So हम ये भी मार्क करके रखेंगे. So ये हो गया something related to what? Commission part. फिर आता है commission agent. A commission agent is a person who buys or sells goods on behalf of his principal and gets commission for his service. So we'll mark this part as well. ये हो गया commission agent. Next है broker. A broker is an agent who brings together the buyer and the seller for the purpose of purchase or sale. This commission is called brokerage and is charged to both the parties. So ये हो गया समथिंग रिलेटेड टू ब्रोकर. नेक्स्ट है ऑक्शनर. यस, ये ऑक्शनर वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है. ये हेल्प करेगा हमें एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू और फॉल्स टाइप ऑफ क्वेश्चंस में. एन ऑक्शनर इज एन एजेंट हु सेल्स गुड्स बाय ऑक्शन. ही सेल्स गुड्स टू द हाईएस्ट बिडर. Many a time name of the principal is not disclosed in the transaction. So पहले तो इतना पार्ट मेन अंडरलाइन करना है. An auctioneer is an agent who sells goods by auction. Next important point is factor. A factor is an agent who is given the possession of goods and enters a contract for sale in his/her own name. उसके बाद है डेल क्रेडर एजेंट. A del creditor agent gives guarantee to his principal that the party to whom she sells the goods will pay the sales price of the goods. If a buyer is unable to pay after the transaction is completed, a del creditor agent is liable for the payment. Agent gets additional commission other than the usual commission for this. This is known as del creditor commission. मतलब वो एडिशनल गारंटी लेने के लिए एन एजेंट इज पेड व्हाट, एन एक्स्ट्रा अमाउंट. वो जो गारंटी ले रहा है, क्योंकि गारंटी लिया इसका मतलब क्या है, इन केस अगर पेमेंट नहीं होता है देन दैट पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल टू डू द नेसेसरी पेमेंट. सो इसलिए वो गारंटी लेने के लिए जो रिस्क उठाया है, फॉर दैट ही गेट्स एन एडिशनल कमीशन एंड दैट इज कॉल्ड एज del creditor agent's commission. And now let us start with the MCQ, fill in the blanks and true or false type of question, that is objective questions. So miscellaneous exercise 1 है. First Roman, choose the correct alternative. First, an agent
who gives guarantee to his principal that the party will pay the sale price of the goods is called A. auctioneer, B. bill creditor agent, C. factor, D. broker. सो यहाँ पे गारंटी ये वर्ड आया है, सो हमने मार्किंग में किया हुआ है कि गारंटी जब ये वर्ड आता है, यस, सो यहाँ पे वी कैन से ये गारंटी वर्ड यूज हुआ है, इसलिए यहाँ पे कौन आएगा, डेल क्रेडिटर्स एजेंट आ जाएगा. सो हमने टिक किया एज व्हाट, ऑप्शन बी एज द करेक्ट आंसर. सेकंड, एन एजेंट हु इज गिवन द पोजेशन ऑफ गुड्स टू बी सोल्ड इज नोन एज A. factor, B. broker, C. auctioneer, D. del creditor agent. Now an agent who is given the possession, ये possession words आया था of the goods, yes, उसको हम बोल सकते हैं as what, factor. तो यहाँ पे will mark it as what, option A. हमने ये मार्किंग किया हुआ है. If you'll read those markings and जो कॉन्सेप्ट देखा है वो देख के फिर आप ये सॉल्व करोगे, you will find all the questions are very easy to answer. The next question is the third one. The date on which the period of the bill expire is called A. legal due date, B. grace period, C. nominal due date, D. date of drawing. Now bill expires उसको बोला जाएगा as what, nominal due date. So option C is the correct answer. Fourth one, the payment date after adding 3 days of grace period is known as A. legal due date, B. nominal due date, C. days of grace, D. date of drawing. सो यहाँ पे आ जाएगा 3 days ऑफ ग्रेस पीरियड अगर ये ऐड हो रहा है, सो नॉमिनल ड्यू डेट प्लस 3 days ऑफ ग्रेस पीरियड विल गिव मी व्हाट, माय लीगल ड्यू डेट. सो ये हो गया ऑप्शन ए एज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5. द सम ड्यू इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए. फेस वैल्यू, बी. प्रेजेंट वैल्यू, सी. कैश वैल्यू, डी. ट्रू डिस्काउंट. सम ड्यू इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, फेस वैल्यू. सो ये फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए. Next, P is the abbreviation of A. face value, B. present worth, C. cash value, D. true discount. So P is the abbreviation of present worth था. Present worth को PW या P से डिनोट करते हैं. So we mark this as option number B. Seventh one, banker's gain is simple interest on A. banker's discount, B. face value, C. cash value, D. true discount. सो बैंकर्स गेन का एक्चुअल फॉर्मूला क्या था, बी डी माइनस टी डी, एंड अगर ये नहीं है तो द सेकेंड फॉर्मूला वाज इंटरेस्ट ऑन ट्रू डिस्काउंट. सो ट्रू डिस्काउंट था, इसलिए यहां पे ऑप्शन डी आंसर आएगा. एथ वन, द मार्क्ड प्राइस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए. कॉस्ट प्राइस, बी. सेलिंग प्राइस, सी. लिस्ट प्राइस, डी. इनवॉइस प्राइस. सो हमने देखा था स्टार्टिंग में कि मार्क्ड प्राइस, कैटलॉग प्राइस, लिस्ट प्राइस, प्रिंटेड प्राइस इज वन एंड द सेम. तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर कि मार्क प्राइस इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, लिस्ट प्राइस. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. व्हेन ओनली वन डिस्काउंट इज गिवन देन ऑप्शन ए. लिस्ट प्राइस इज इक्वल टू इनवॉइस प्राइस, बी. इनवॉइस प्राइस इज इक्वल टू नेट सेलिंग प्राइस, सी. इनवॉइस प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, डी. कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू नेट सेलिंग प्राइस. नाउ सबसे पहले हमने जब ये कॉन्सेप्ट देखा था तो यहाँ पे क्या था, सबसे फर्स्ट था कि लिस्ट प्राइस था. लिस्ट प्राइस पे जो डिस्काउंट दिया जाता है उसको ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं. सो लिस्ट प्राइस माइनस द ट्रेड डिस्काउंट विल गिव मी व्हाट, इनवॉइस प्राइस. नाउ सिंस ओनली वन टाइप ऑफ डिस्काउंट इज देयर, मतलब फर्दर कोई डिस्काउंट है नहीं, सो ये इनवॉइस प्राइस के बाद जो डिस्काउंट दिया जाता है उसको कैश डिस्काउंट बोलते थे, बट यहाँ पे कैश डिस्काउंट वाला पार्ट है ही नहीं क्योंकि एक ही डिस्काउंट दिया है. सो इनवॉइस प्राइस जो है वो खुद ही क्या बनेगा, नेट सेलिंग प्राइस. सो इनवॉइस प्राइस इज इक्वल टू नेट सेलिंग प्राइस. तो ये ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर आ गया. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10. द डिफरेंस बिटवीन फेस वैल्यू एंड द प्रेजेंट वर्थ इज कॉल्ड ए. बैंकर्स डिस्काउंट, बी. ट्रू डिस्काउंट, सी. बैंकर्स गेन, डी. कैश वैल्यू. सो यहां पे ये क्वेश्चन नंबर 10 था. सो फेस वैल्यू एंड प्रेजेंट वर्थ के बीच का जो डिस्काउंट है एफ वी माइनस पी डब्ल्यू इज कॉल्ड एज व्हाट, ट्रू डिस्काउंट. क्योंकि यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं कि एस जी इज इक्वल टू पी डब्ल्यू प्लस टी डी था, एंड एस जी सेम एज एफ वी इज इक्वल टू पी डब्ल्यू प्लस टी डी है, एंड वी कैन से एफ वी माइनस पी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या आएगा, टी डी. एंड सो वी मार्क ट्रू डिस्काउंट एज द करेक्ट आंसर. सो यहाँ पे हमारे एमसीक्यू क्वेश्चंस हो गए.